Yesterday we had learnt that principles of management are the general broad guidelines. जैसे आपको गाइड कर दिया जाता है कि दिस यू हैव टू डू इन दिस मैनर, बट उसके अंदर अपना इनपुट डालकर टू प्रेजेंट इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, दैट इज योर. Similarly, the managers use these guidelines as a blueprint, you can say a sketch, you can say, and whatever they have to fill, they fill according to the situation. Then we learned about the characteristics and significance. Today we are moving towards the first one. We have two in our syllabus. एक हमारा है टेलर और दूसरा है हमारा फेयल्स. फेयल्स के जितने प्रिंसिपल्स हैं, all the principles are basically used in the what you can say work office के अंदर, administration. And Taylor के principle most likely they are used in the workforce, जहां आपका actual work चलता है, यानी कि workshop, the manufacturing unit वहां. But it is not that it is used only there. There definitely it can be used on the other counterparts also. So let us start with Taylor's scientific management. Taylor को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि उनके जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर साइंटिफिकली डिराइव्ड. Scientific management refers to an important stream of one of the earlier schools of thought of management, referred as classical school. ये 1 mark में schools के अंदर these questions have been included. The other two are streams belonging are Fayol's and Max Weber's bureaucracy. हम लोग मैक्स वेबर के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे. We would be definitely discussing about the Fayol's principles. Frederick Winslow Taylor was an American mechanical engineer who sought to improve industrial efficiency. क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जहां बेसिकली आपकी वर्कफोर्स है वहां पर. फर्स्ट ही बिकेम एन अप्रेंटिस. नाउ अप्रेंटिस वर्ड आपके बाद में भी स्टाफिंग में भी आएगा. अप्रेंटिस होता है टू वर्क अंडर अ मास्टर एक्सपर्ट, जैसे टेलर के नीचे, या फिर आपके जो प्लम्बर्स होते हैं, इलेक्ट्रिशियंस होते हैं. Learning factory conditions at the grassroots level, he earned a degree in mechanical engineering. He was one of the influential leaders of efficiency movement and was highly influential in reshaping the factory system. Taylor's contribution must be seen in the light of efforts made to perfect the factory system. उनका मानना था, ये आपके पेपर में काफी आए हुए हैं, तो आई एम जस्ट टेकिंग ऑल दोस. ही थॉट बाय साइंटिफिकली एनालाइजिंग वर्क it would be possible to find one best way to do. ये क्वेश्चन ऐसा आया था, ये किसने बोला, किसने सोचा. He is also, as I've already yesterday I told you, motion study, time study, ये सब उन्होंने अपने आप को जो है मतलब उन्होंने जो है he had tried to implement. He believed the contemporary management was amateurish and should be studied as a discipline. He wanted workers should cooperate with management and there should be no need to trade unions. उनका मानना था कि एक ट्रेन्ड क्वालिफाइड मैनेजर एंड कोऑपरेटिव एंड इनोवेटिव वर्कफोर्स दोनों अगर साथ में रहते हैं तो देन द रिजल्ट्स आर द बेस्ट. ये अभी हम आगे पढ़ेंगे. वी वुड बी रीडिंग ऑल दीज एज अ प्रिंसिपल. ही इज नोन फॉर द coinage of scientific management in his article The Principle of Scientific Management. After he had been fired, he was selected to the president of American Society. He was a professor. He became executive. Not much needed about all these things. इनके जो basic आपके हैं, he instructed his fellow workers to work in phases. He wanted to have the authority
Then he also introduced the piece weight system, ये अभी हम पढ़ेंगे. But then उसका जो उनका जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे, that company was sold and he also died in 1915 due to pneumonia. But your questions which can come from this is ये वाला जो एक है, this, then this, and then who coined the principles of scientific management. So as I said, scientific is जब industries आई थी, it was a period when industries just started coming up. So there was no factory, what you say, एक proper आपका organizations नहीं होता था. And इसको वो बोलते हैं, please मतलब कि remember, rule of thumb. Thumb क्या होता है? Illiterate. मतलब they would factories by rule of thumb unable to handle the situation as they arose but suffered limitation of trial and approach. रूल ऑफ थंब का मतलब होता है विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंस, जस्ट ट्रायल एंड एरर. ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या होता है? ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ट्राई करना, उसके बाद इफ डजंट वर्क छोड़ देना, मतलब करके देख लेते हैं चलो, which is मतलब कि in the factory it is not advisable because it leads to wastage. Sometimes it may lead even to an accident. For their experiences to be evaluated, it was important to know कि क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है. So there was a need to follow an approach of scientific methodology. और यही आपके टेलर थे जिनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं, एज अपोज टू रूल ऑफ थंब. और उन्होंने अपने जो है एक एक करके ही हैड गिवन सम प्रिंसिपल्स. अब याद रखिए, टेलर के प्रिंसिपल्स आपके जो है दे आर ओनली 4, एंड उनके जो टेक्निक्स हैं, मतलब इन प्रिंसिपल्स को हमें प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, वो आपके टेक्निक्स हैं. और दिस व्हाई आई एम शाउटिंग एंड टेलिंग यू इज इन द एग्जाम, identify the principles of scientific management. तो साइंटिफिक हो गया, तो आपको वो 4 जो हमारे हैं, जो अब हम पढ़ेंगे, you have to choose from them. And if it is identify the technique of scientific management, technique, तो जो हम बाद में पढ़ेंगे, वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, वो होगा. तो यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज 2 टर्म्स. इन दोनों टर्म्स के बीच में आपको हमेशा याद रखना है. तो द वेरी फर्स्ट इज साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब. मतलब कोई भी जो काम हम करते हैं, it should have a rational approach. Rational मतलब right, wrong, what is the cause, what will be the effect. It should not be based on let us do it and try करके देख. Taylor pioneered the introduction of method of scientific inquiry into the domain of management practice. We have already referred to the limitations of rule of thumb, as different managers would follow their indigenous rules of thumb. It is but a statement of obvious, all would not be equally effective. मतलब try करना. Taylor believed that there was only one best method to maximize efficiency. ये जो मैंने underline किया है, this is the clue. Identify. ये किसको कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट है? तो दिस इज रूल ऑफ थंब. साइंटिफिक डिसीजन, नॉट रूल ऑफ थंब. दिस कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस एंड इट शुड सब्स्टिट्यूट द रूल ऑफ थंब थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. उनका मानना था दैट द organization should involve in investigation of traditional method through work study, unify best practice, develop a standard method,
जो सभी काम कर सकते। पहले क्या होता था, जिसका जैसा चल रहा है वो वैसे करता था. Sometimes it works, sometimes it doesn't, did not work. But he said there should be one best method. According to, this is very, 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 very important, came in the exam many a times. According to Taylor, even a small production activity of loading picks of iron into box car, मतलब छोटे छोटे जो आयरन के टुकड़े होते हैं उनको लोड करने के लिए भी हमें ये देखना चाहिए कि विच विल बी द बेस्ट मेथड, जिससे कि टाइम, एनर्जी, हमारा सब कुछ जो है वो सेव हो. द मोर सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस द ग्रेटर वुड बी सेविंग. ये पूरा आया था और इसमें पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. Now, use of internet has brought the dramatic improvement in internal efficiencies and customer satisfaction. मतलब अब हम scientifically हम देखें तो there are so many things which we want to do only through the online one. Why? That is because it not only saves the time, it also increases the efficiencies, it also reduces the wastage. एक सिंपल सा, वेरी सिंपल, मतलब घर में हम यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनेट. तो व्हेन वी आर मेकिंग द पेमेंट्स, तो क्या होता है, what it how it helps. When you are making in cash, you may not be counting the points, you may sometimes waste it. लेकिन नेट के थ्रू होता, यू आर कीपिंग अ चेक. वो जो 10 रुपए 15 रुपए आगे पीछे होते हैं वो भी नहीं होता. एवरीथिंग इज टू द पॉइंट. यानी कि आप पैसा भी बचा रहे हो, यू आर ऑल्सो हैविंग अ चेक कि कितना खर्चा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा. सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइंस इट कम्स, it has helped us to be more efficient, more financial independence. तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब होता है देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट मेथड एंड वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई हमारी कंपनी के लिए कौन सा मेथड सही है एंड हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंपनी. अब जो दो आएंगे थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े से, दोनों एक जैसे हैं इसीलिए. हार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है मिलजुल कर, कोऑपरेशन, नॉट डिस्कॉर्ड. आपस में वी शुड नॉट कीप डिस्कॉर्ड. Factory system of production implied that managers served as link between owners and co-owners, वो बीच में होते हैं. तो the managers का क्या है, they have to get the work done from the workers. It should not be difficult for you to appreciate that. Always existed the kind of class conflict. मैनेजर कहता है मैं तो बड़ा हूं, वर्कर्स कहते हैं हम काम करते तो क्या हम लोग कम हो गए. दिस क्लास इज ऑलवेज देयर और वो आज भी रहता है. द मैनेजर वर्सेस वर्कर्स. Taylor recognized this conflict helped none, neither the worker nor the manager nor the factory owners. He emphasized there should be complete harmony between management and worker. ये वाली जो लाइन्स है, अगर ये लाइन आएगा तो आपको ये वाला मतलब की प्रिंसिपल लिखना है. बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इंपॉर्टेंट. और इसके लिए वो कहते हैं मेंटल रेवोल्यूशन. इसके लिए वो कहते हैं मेंटल रेवोल्यूशन, यानी कि चेंज इन योर थिंकिंग. आपको अपनी सोच में चेंज करना है. ये वाला जब क्वेश्चन आता है मेनी टाइम्स देयर इज लॉट्स ऑफ एम्बिग्युइटी, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है. प्लीज इस इन लाइंस को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही याद रखना. मैनेजमेंट शुड शेयर the gains of the company with the workers. At the same time, workers should work hard and be willing to embrace changes for good of the company. ये और जो नेक्स्ट है, दोनों में ये प्रॉब्लम्स, मतलब दोनों बहुत कॉमन है, लेकिन ये वर्ड्स हैं
जो आपको हेल्प करेगा. According to Taylor, scientific management has for its foundation the firm conviction that true interest of the two are one. दोनों किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने गोल के लिए. तो ना ही एम्प्लॉयर के बिना फैक्ट्री होगी और ना ही एम्प्लॉयज के बिना फैक्ट्री होगी. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड वी आर फॉर ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया है विच इज रियलिटी एंड सचमुच में होता है. Japanese work culture is classic example of a situation. They have a paternalistic style of management. मतलब father pattern, उनका एक पैटर्न चलता है. हाउ वहां पर क्या होता है, द वर्कर्स इफ दे आर ऑन स्ट्राइक, वो शोर मचाकर मुर्दाबाद नहीं बोलते, वो काम बिल्कुल पूरा करते हैं, इवन वर्क मोर देन द नॉर्मल वर्किंग आवर्स, एंड अपने ऊपर जो है ब्लैक कलर का बैच पहनते हैं, ये दिखाने के लिए कि दे आर नॉट हैप्पी विद द मैनेजमेंट. इन मेनी ऑफ द कंट्रीज दे गो ऑन स्ट्राइक, दे प्रोटेस्ट, वो पत्थर मारते हैं. तो इंस्टेड ऑफ दैट दे हैव अ मेंटल रेवोल्यूशन. अब जो थर्ड है, दैट इज आपका एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. मतलब उसका ही थोड़ा आगे का वर्जन. अब इनमें आपको वो लाइंस याद रखनी है. देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म. मतलब मैनेजमेंट शुड नॉट, इसमें जो पॉइंट आएगा क्लास 12, management should not close its ears to any constructive suggestion made by the employees. They should be rewarded for their suggestions. They should be part of management, and if important decisions are taken, they can be taken into confidence. Second, next, the workers should resist from going to strike and making unreasonable demand. पहले वाले में क्या था, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि वी नीड टू वर्क टुगेदर. वर्क टुगेदर में ही वो आगे बोलते हैं कि साथ में काम करने का मतलब है एक दूसरे की परेशानियां और एक दूसरे के प्रॉफिट्स को भी शेयर कर. दैट मीन्स लाइक वी टॉक्ड अबाउट द पैटर्नलिस्टिक साइड, मतलब की स्टाइल, जहां पर द एम्प्लॉयर टेक्स केयर ऑफ द एम्प्लॉइज, दैट इज इन जापानीज कंपनी. मतलब हमें भी उनके बारे में सोचना चाहिए और उनको भी हमारे बारे में सोचना चाहिए. अकॉर्डिंग टू टेलर, there should be almost equal division of work and responsibility. All day long, management should work almost side by side with the worker, helping them, encouraging them, and smoothing the way for them. It should not be I'm resting and you do it. It should not be like that. It should be let us work. इनमें दोनों में जो पॉइंट्स आपके आते हैं, ये वाला जो मैंने ग्रीन से लगाया है, मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स, एंड इस वाले के अंदर आपका जो है ये वाला, मैनेजमेंट शुड शेयर इट्स गेन वाला. अगर ये आता है, इट रेफर्स टू हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. एंड अगर ये आता है तो दिस इज कोऑपरेशन नॉट, मतलब अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए. इट शुड बी about the company, and when we are working for the company, अगर सामने से कोई कुछ बताता है तो we need to understand, और वो it is for both the people. मैनेजमेंट को भी समझना चाहिए. जरूरी नहीं है कि every time we are wrong, we are right, I'm sorry, every time we are right, ऐसा नहीं होता है. भाई मैं मैनेजमेंट हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं तो मुझे ही सब कुछ आता है, ऐसा जरूरी नहीं. इट कैन बी दैट वो लोग ऑन द प्रैक्टिकली वो लोग काम कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली हो सकता है कि दे मे बी फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, तो दे मे कम आउट विद सम कंस्ट्रक्टिव कि सर आप इसको इस तरीके से करोगे तो इट वुड गिव बेटर. एंड अगर हम उस वक्त में ऐसा सोचे, नो आई एम एजुकेटेड, हमें उनके कंस्ट्रक्टिव आइडियाज को देखना चाहिए, एंड इफ इट इज हेल्पिंग द कंपनी, इट शुड ऑलवेज बी गिवन.
in this Dabur India, they have this scheme. When the workers come forward, they give some constructive suggestions. They tell that this can be done in this manner. ये ऐसा हो सकता है, इसमें आप ऐसे सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं. They not only implement, even उन workers को reward भी देते. So that is, now many of the companies are using such techniques. Last but not the least, development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. अब मान लो कि होता क्या है, when you are working, मतलब now say you all are in 12th standard, maybe you will pursue something. I don't know what you are going to pursue, say BCom, BBA. I'm just starting with the graduation level. Then you start working. Now how does, मतलब कि आप जब काम करते हो, तो what should be the way you should be, appointed? Natural है, आपको जिस चीज का सबसे ज्यादा नॉलेज है, say you are good in accounts. अगर if you are being put in accounts only, so what will happen is your interest will be also covered, and जो कंपनी को जो फायदा होता है with your expertise, वो भी होगा. But at the same time, ऐसा नहीं है कि आप किसी कंपनी के अंदर गए और आपने स्टार्ट कर दिया, ओके let me now start with the accounts. It is not possible. You need to be given some training. You need to be developed. And this is also applicable at the workforce. Not only for the employees, it is also for the workforce. अगर आप वर्कर्स को लेकर आते हो, उनको सोफिस्टिकेटेड मशीन्स पे बिठा देते हो, लेकिन उनको काम ही नहीं करना आता है, तो फिर व्हाट विल हैपन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें किस तरीके का, सी अब एक मतलब मान लो, मतलब इमेजिन करो, एक बिल्कुल टूटा फूटा पतला दुबला सा इंसान है और उसके सर पर इतना बड़ा बोझ रखा है. व्हाट विल हैपन? यानी कि उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग द वर्क हैज नॉट बीन गिवन. तो अकॉर्डिंग टू टेलर द वर्क शुड बी, जब हम पर्सोनल्स यानी कि जो वर्कर्स एम्प्लॉइज होते हैं उनको जब हम चूज करते हैं, तो वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड what is the basic criteria we need, and also that person should be given some training जिससे कि accidents या mistakes आपके कम हो. Industrial efficiency depends to a large extent on personal competency. किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा जो आपका बैकबोन होता है ना, वो आपके लोग एम्प्लॉइज होते. As such, scientific management also stood for worker development. Worker training was essential also to learn the best method developed. As a consequence, a scientific approach, Taylor was of the view that concern for efficiency could be built in the right from the process of employee selection. ये आपके पेपर में ये वाली लाइन आई थी, and you were asked to identify. उनका मानना था each person should be scientifically selected. अभी जो साइंटिफिकली का वर्ड मैंने अभी आपको जो एक एग्जाम्पल दिया था, एक लीन सा आदमी, आप उसके ऊपर 100 किलो रखोगे तो व्हाट विल हैपन? यानी द वर्क शुड सूट हिज और हर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज. जो अभी आपको मैंने बीकॉम और बीबीए का एग्जाम्पल दिया, वो भी ऐड हुआ. टू इंक्रीज द एफिशिएंसी देयर शुड बी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग. ये आजकल आप अगर किसी भी ऑफिस में, मतलब कॉर्पोरेट में देखोगे, दे आर कंडक्टिंग दीज. Efficient employees would produce more and earn more, and it will also ensure efficiency and prosperity for company and workers. One of the very very very, जिसको हम कहते हैं ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज.
अगर वर्कर, यहाँ वर्कर इज नॉट, प्लीज डू नॉट टेक इट फॉर द लेबर फोर्स। वर्कर मतलब जो एम्प्लॉइज होते हैं, इफ दे आर selected and they are given the work according to their capability, their production, their productivity, their interest is always on the higher side. And as a counselor I always believe, like for example in our, मतलब हमारे कॉमर्स के अंदर we have BBA and BCom, राइट, एंड दोनों के बाद हम MBA ही करते हैं, उसका कोई मतलब वो नहीं है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, many times at the time when the forms are to be filled, the children are very much unclear, though I tell them to fill all the forms, but what exactly, अब अगर आपका इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में है, मैनेजिंग इन द सेंस कि यू वांट ओनली द एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, then you should always opt for BBA. And if you are interested in accounts, आपको अकाउंट्स में बहुत मतलब की है, then you should always opt for BCom. और फिर when we are doing MBA, तो MBA के अंदर we have the specialization, like अगर आप BCom से कर रहे हो आप फाइनेंस की तरफ जा सकते हो, आप BBA से करते हो आप HR की तरफ जा सकते हो, आप IT की तरफ जा सकते हो, मतलब मार्केटिंग, सेल्स। ऐसा नहीं कि BCom वाला नहीं जा सकता, लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट आपका जॉब होगा, तो योर प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज ऑन द हायर साइड। So it is a very important component at both वर्कर्स लेवल, एम्प्लॉइज लेवल, मतलब जो लोग ऑफिस के अंदर है, जो लोग मतलब कि फैक्ट्री के अंदर। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, पेपर का क्वेश्चन है, एक्सीडेंट्स कैन हैपन। अगर एक वर्कर जिसको ट्रेनिंग नहीं दी गई है, एक वर्कर who is not capable for that work, the person may land in trouble. तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू टेलर, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, मतलब उस इंसान का भी डेवलपमेंट होना चाहिए थ्रू ट्रेनिंग, एंड उसको जब हम जॉब देते हैं इट शुड बी अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटीज। अब हमारा आता है टेक्निक्स। टेक्निक्स का मतलब होता है ये जो हमने चार ऊपर पढ़े थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब आपको साइंटिफिकली सोचना चाहिए। देन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी। इनको हम प्रैक्टिकली एट द ग्रास रूट हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते। तो सबसे पहला, अब जो मैं बोलती जाऊंगी दिमाग में कहीं पर भी आप नोट करोगे, इट शुड बी ऑलवेज देयर इन योर माइंड। फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब होता है कि जो फैक्ट्री है वहां पर जो लोग काम करते हैं उनके लिए देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट। उसके लिए इसे कि जो काम होता है उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब कि बांट दो। नाउ दिस ऑल्सो इज वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट टू फेयोल, क्योंकि फेयोल भी ये मानते थे। बट आगे आगे अंडर फंक्शनल फोरमैनशिप टेलर का मानना है कि अगर एक वर्कर है, वर्कर एक है, लेकिन जब वो ऑफिस के अंदर, जब वो फैक्ट्री के अंदर आता है, तो फैक्ट्री में दो डिपार्टमेंट्स होते हैं। मतलब फैक्ट्री जहां पर है वहां दो डिपार्टमेंट है। पहला, जैसे ही वो अंदर आया, आई एम जस्ट मेकिंग दिस फोटो,
नाउ अकॉर्डिंग टू टेलर, अगर एक इंसान फैक्ट्री के अंदर आ गया तो व्हाट हैपेंस इज, ही से सबसे पहला एक डिपार्टमेंट होगा प्लानिंग। और प्लानिंग क्या मतलब, फैक्ट्री मैनेजर एक, उसके नीचे 2 इंचार्जेस। जो प्लानिंग का इंचार्ज होगा उसके नीचे और 4 लोग, मतलब मैनेजर के नीचे 2 इंचार्ज, 2 इंचार्जेस के नीचे 4 4 8 लोग। एक इंस्ट्रक्ट करेगा, दूसरा उसको रूट बताएगा हाउ ही हैज टू मूव फर्दर, तीसरा टाइम एंड कॉस्ट को चेक करेगा, एंड चौथा डिसिप्लिन को देखेगा। फिर वो आगे जाएगा, द वर्कमैन एक ही है और एक इंसान उसके स्पीड को एनालाइज करेगा, दूसरा जो मटेरियल है, जो मशीनें हैं, आर दे, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में आता है क्लास के अंदर, आर दे इन प्रॉपर प्लेस, वो चेक करेगा। अगर उनमें कोई खराबी है तो रिपेयर बॉस उनको ठीक करेगा, एंड जो बन गया है मटेरियल उसको क्वालिटी को चेक करेगा इंस्पेक्टर। यानी एक वर्कमैन को 8 लोग जो है इंस्ट्रक्ट करेंगे। वर्कमैन एक है लेकिन उसको इंस्ट्रक्ट करने वाले कितने हैं? 8। एक उसको इंस्ट्रक्ट करेगा, दूसरा रूट बताएगा, तीसरा टाइम देखेगा, चौथा डिसिप्लिन, पांचवा स्पीड, छठा मतलब कि उसके समान। दिस इज अ वायोलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ही सेज दैट इसको हम बोलते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। In the factory system, the foreman represents the managerial figure। मतलब जो foreman होता है, ये आपके पहले वाले चैप्टर में आता है ना, आइडेंटिफाई द लेवल, तो ही इज एट द फर्स्ट लाइन, मैनेजर बोलते हैं या सुपरवाइजरी लेवल, with whom the workers are to face on daily basis। आपको पता है, तो he is the pivot around whom revolves the entire production planning, implementation and control। So Taylor concentrated on improving the perform at the role in the factory setup। तो उसका मानना था कि a good foreman or supervisor and found that no single person could fit in them। भाई एक इंसान में ये सारे गुण तो नहीं हो सकते हैं ना। So he said there should be functional foremanship through 8 persons। He advocated, ये पेपर में आया हुआ है, this is important, it has come in the exam। मतलब उन्होंने पहले planning is mental and execution is doing it in action। This concept was extended to the lowest level of shop floor, मतलब in the factory, and it is called as functional foremanship। Under the factory manager, there would be 2 in-charges, and under planning, 4 personals, and under execution, again 4. Under the production in charge, the personals who would work were speed boss, gang boss, repair, etc. And they are responsible for timely and accurate completion। जो ऊपर वाले हैं उनका काम सिर्फ उनको इंस्ट्रक्ट करने तक है, डिसिप्लिन तक है, लेकिन इनका काम है वो कंप्लीट होना, देन इट शुड ऑल्सो बी चेक्ड। Functional foremanship, again an important concept, is an extension of principle of division and specialization। How it is division? काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। Each worker will have to take orders from these 8 foremen, and foreman should have intelligence, education, tact, grit, judgment, special knowledge, manual dexterity, energy, honesty, and good। This cannot be found in one,
So he proposed 8 specialists. उन्होंने इसीलिए इसको 8 स्पेशलिस्ट के अंदर किया, which can be accordingly. Now आपके पेपर में जब आता है बच्चा कि what do they do? तो इंस्ट्रक्शन क्लर्क जो है, he would be instructing the steps. Please do hear very, very, very alertly because it's not given, it comes. सेकेंड इज रूट क्लर्क. रूट क्लर्क जो है वो रूट बताता है कि नेक्स्ट उसको कैसे कैसे कहाँ जाना है, क्या करना है. टाइम एंड कॉस्ट विल बी चेकिंग इन हाउ मच टाइम एंड विद मिनिमम कॉस्ट कैसे पूरा होगा. एंड डिसिप्लिन वाला उसके ऊपर जो है ही वुड बी कीपिंग अ कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ, मतलब कि उसको जो है वेदर ही इज डूइंग द वर्क ऑन टाइम और नॉट. स्पीड बॉस विल बी चेकिंग द स्पीड एक्यूरेटली, वो स्पीड को चेक करेगा. गैंग बॉस यानी कि कीपिंग थिंग्स रेडी, कीपिंग थिंग्स रेडी, याद रखिएगा. एंड रिपेयर बॉक्स, रिपेयर द इक्विपमेंट इफ they are not working. And inspector जो होगा लास्ट वाला, that person would check the qualities of the material that have been produced. उनको जो है एक random check जिसको हम बोलते हैं वो करें. नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. ये कैसे किया जाए आप लोग, और ये मार्केटिंग का भी एक हिस्सा है. आप लोगों ने देखा होगा, मतलब एवरीवन, ईच वन ऑफ अस बाय द शूज. जूते सब खरीदते हैं, वॉलेट सब खरीदते हैं, राइट. सो व्हेन वी आर बाइंग देम, आपने देखा होगा कभी वो कहेगा ये साइज 38 है, कभी कहेगा ये साइज 6 है. व्हाट इज द डिफरेंस? What is the difference between the size which is 6 and which is 38? The difference is simplification which has been done according to the companies. जो यूके है वो 6, 7, 8 को लेकर चलता है, हम लोग जो है 38, 39 वाले को लेकर चलते हैं. तो यूएस साइज को जो है वो ऐसे 37, 38 लेकर चलता है, यूके 1, 2, 3, 4 लेकर चलता है. तो दिस दे हैव, मतलब कि उन्होंने जो है सिंप्लीफाई एंड स्टैंडर्डाइज कर रखा. हाउ? अभी मैंने आपको शूज का एग्जांपल दिया. वी वियर द शूज, some like to wear the sports shoes, some like to wear the leather shoes, and some like to wear the fox leather shoes. यानी कि ये जो लेदर के अंदर ही आपका, मतलब कि प्योर लेदर, फॉक्स लेदर, क्रोकोडाइल लेदर, मतलब ऐसे अलग अलग लेदर्स आते हैं. तो ये जो हम यूज करेंगे, जो हमारी कंपनी यूज करेगी, उसका हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं. मतलब उसका थिकनेस, उसकी, मतलब कि उसका कलर, एवरीथिंग, देयर इज अ स्टैंडर्ड. मतलब व्हाट प्रोडक्ट यू विल यूज की वही चीज आए. जैसे प्लास्टिक्स भी होते हैं, इवन व्हाइल यू आर यूजिंग द प्लास्टिक, जो जो माइक्रोन्स होते हैं, देयर इज अ स्टैंडर्ड. Standard here is not for the dignity. Standard here means something uniform. कॉटन, कॉटन के अंदर मेरी कंपनी सिर्फ प्योर कॉटन करती है, मान्या की कंपनी कॉटन ब्लेंड करती है. तो उनका स्टैंडर्ड जो है वो कॉटन ब्लेंड है, मेरा कॉटन है. यानी कि मैं, जो मेरे मटेरियल्स हैं, मेरा जो गारमेंट है वो प्योर कॉटन के अंदर है. एंड सिंप्लीफाई का मतलब होता है जो आपके साइजेस, अभी जो मैंने आपको यूके एंड यूएस का बताया, वो जो हमारे साइजेस होते हैं उनको जो है सिंप्लीफाई करके रखना. नाउ हाउ विल यू, अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा तो आप जूतों को कैसे काटोगे? हाउ यू विल कट इट? so there should be some simplicity. Similarly, इंडिया के अंदर, इंडिया इज लार्जर, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी. तो हम ग्रेडिंग करते हैं टी का, सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब देयर इज अ ग्रेडिंग.
आप लोग मार्केट जाते हो, प्योर वेज ग्रीन कलर ग्रेड करते हैं, रेड कलर नॉन वेज। तो ये एक तरफ से आपका सिंप्लीफाइड है, दैट वुड हेल्प। जैसे अब इससे क्या हो गया, ग्रेडिंग करने से कस्टमर के लिए आसान हो गया खरीदना। सिमिलरली इफ यू आर सिंप्लीफाइंग योर वर्क, देन वर्कर्स के लिए भी इट बिकम्स इजी। Taylor was an ardent supporter of standardization. He said scientific method should be used to analyze methods of production prevalent under the rule of thumb. The best practices can be kept and refined to develop a standard. This can be done through work study technique, time study, motion study, fatigue study, method study, जो हम बाद में करेंगे. Even the contemporary techniques of business process, including re-engineering, Kaizen, and benchmarking, are standardization. ये आजकल चल रहा है. Standardization refers to the process of setting standards for every business activity. There can be standard for raw material, standard time, standard product, standard machinery और वर्किंग कंडीशन. दे आर द बेंचमार्क्स. मतलब ये हमारे लिए जरूरी होता है. टू reduce a given line of product to fixed type, establish interchangeability of manufacture. मतलब उनका मानना है कि अगर आप, ये वाला पेपर में आया था, दिस केम इन द एग्जाम, इंटरचेंजेबल मतलब अगर आपका स्टैंडर्ड होगा तभी तो. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा, मेरा जो है आज, मतलब इफ माई बैटरी, अभी मेरा लैपटॉप का बैटरी खराब हो गया था लास्ट में, तो देर इज अ स्टैंडर्ड फॉर एप्पल, मतलब इसका लैपटॉप का बैटरी का, तो आई बॉट, जो उसका ऑल्टरनेटिव था वो मैंने ले लिया. अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो आई नीड टू गो फॉर द ट्रायल एंड एरर मेथड. दैट हेल्प्स इन एक्सेलेंस एंड क्वालिटी. Simplification aims at eliminating superfluous variety, sizes, dimension, and standardization is आपका exist. मतलब standard क्या होता है, कौन सा क्लोथ, एंड सिंप्लीफिकेशन इज, से विमेन्स है तो विमेन के अंदर भी आपके अलग अलग है, उनको और सिंप्लीफाई करना, ये चलता ही जाएगा. सिंप्लीफिकेशन में हम क्लोथ्स बनाते हैं, तो स्टैंडर्ड क्या है, कॉटन. फिर सिंप्लीफिकेशन क्या है, चिल्ड्रंस क्लोथ. अब चिल्ड्रन के अंदर भी इन्फेंट, चाइल्ड, वो सिंप्लीफाई हो जाए. इट एम्स इन eliminating unnecessary diversity of product, results in savings of cost, labor, machines, and tools. Most large companies like Nokia, Toyota, and Microsoft have successfully implemented standardization simplification. आपके जितने भी शैम्पू, जितने भी साबुन, soaps, all comes under all. मतलब these are the examples. Standard क्या है, the basic material which they are using, and simplified है 100 grams, 200 grams, 500 grams. तो दैट इज आपका, उन्होंने उसके जो साइज है उसका या फिर जो क्वांटिटी है उसको सिंप्लीफाई कर. अब नेक्स्ट, ये सारे आपके आइडेंटिफिकेशन में आते हैं जो अब आने वाले. मेथड स्टडी. ही हैज एडवोकेटेड कि हर काम को करने का एक सही तरीका होता. देर आर वेरियस मेथड्स फॉर डूइंग द जॉब्स. ये पूरा जो लिखा हुआ है ना क्लास 12, ये पूरा का पूरा एज अ केस स्टडी आया था टू आइडेंटिफाई. मतलब उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि राम इज वर्किंग एज अ मैनेजर. he says that there is one best way of doing the work, there are various method, ऐसे करके पूरा पैराग्राफ आया था. एंड आपको आइडेंटिफाई करना था कौन सा मेथड है, तो कौन सी स्टडी. To determine the best way, there are several parameters. मतलब for procurement of raw material, हमें कौन से मेथड से प्रोक्यूर करना चाहिए, how it should be delivered. Taylor devised the concept of assembly line. This is one. Assembly line क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इन अ सीक्वेंस. इन अ सीक्वेंस
जो फोर्ड मोटर ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। मतलब पहले, अब एक गाड़ी बनती है तो दे हैव एन असेंबली लाइन, पहले ये बनेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इसको पहले फिट करेंगे, तो उससे क्या होता है, उनका कॉस्ट एज वेल एज टाइम आपका कम हो जाए। Ford Motor Company used this concept very successfully. The objective is to minimize the cost of production, maximize the quality and customer satisfaction. जैसे आपके प्रोसेस चार्ट फॉर डिजाइनिंग अ कार, असेंबली लाइन मतलब द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, प्लेस फॉर मैन, मशीन, रॉ मटेरियल, मतलब ये सारा कैसे होना चाहिए, किस मेथड से हमें करना चाहिए। मोशन, अब मोशन मतलब मूवमेंट, हाथ, पैर, पुशिंग द सब थिंग्स। आपने देखा होगा, वी हैव द लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन होता है उनके अंदर आपके लंबे वाले लिफ्ट होते हो, उसका नाम क्या, क्रेन्स होते हैं। तो व्हाई दे आर देयर? दैट इज बिकॉज देयर इज अ राइट पोजिशन। Motion study refers to movements like lifting, putting objects, sitting, changing position, which are done while doing any unnecessary movements are sought to be eliminated. मतलब Taylor and his associate Frank Gilbert were able to reduce motions in bricklaying from 18 to just 5. मतलब पहले 18 मूवमेंट्स थे, उन्होंने सिर्फ 5 मूवमेंट से उन्होंने किया। मतलब वो कहते हैं मोशन, आपका जो मूवमेंट है वही होना चाहिए विच इज गिविंग सम प्रोडक्टिविटी। टेलर यूज्ड stopwatches and various symbols and color to identify different motions. Through motion study, he was able to design suitable equipment, tools to educate workers. The results were truly remarkable. टाइम स्टडी, यानी कि एक काम को करने में कितना टाइम लगता है। आप लोगों ने देखा होगा, while I give you the, I don't know how much serious you take it, but if you see your schools, they give you 3 hours to complete a test, an exam, 1 hour when it is a unit test. Similarly, I give you 45 minutes or 60 minutes. What is that? There is always, आपके स्कूल के अंदर, वर्कर्स के अंदर, देयर वुड बी ऑलवेज सम पीपल जो जल्दी कर लें, एंड देयर वुड बी ऑलवेज पीपल जो थोड़ा टाइम ज्यादा लेकर करें। तो टेलर का मानना था जो जल्दी करता है वो खाली बैठ जाता है, और जो देर से करता है उसके लिए, तो देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड टाइम। उसके लिए पहले वो कहता है कि जितने भी लोग हैं उनसे काम करवाओ और देखो मैक्सिमम लोगों ने कितने टाइम के अंदर उस काम को किया, एंड दैट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड एज द टाइम। It determines the standard time taken by the to perform a well-defined job. Time measuring devices are used. The standard is fixed for whole of the test. जैसे मैंने आपको बताया कि पहले वो टेस्ट लेता है, 10 लोगों को काम देता है, and he sees under how much time the maximum people have completed, and then he takes it as a standard time. The objective is to determine, इसका मेन क्या होता है, the number of workers to be employed, frame suitable incentive and determine labor cost. अगर एक काम को हम इतने टाइम के अंदर एक इंसान कर सकता है तो हाउ मच लेबर डू वी नीड। For example, on the basis of several observation, the standard time taken by worker to make one cardboard is 20 minutes. यानी कि 1 घंटे में वो 3 बनाएगा, यानी कि 8 घंटे में वो 24 बनाएगा, इफ इट इज द स्टैंडर्ड। तो उसमें 1 घंटा अगर हमने लंच वगैरह के लिए हटा दिया तो 21 बनाएगा। दैट मीन्स ही सेज दैट 7 hours a worker made 21 boxes at 3। तो इससे आपको कितने बॉक्सेस बनाने हैं, मतलब अगर आप एक दिन में इफ यू वांट 84 बॉक्स टू बी मेड तो आपको 4 वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक वर्कर 21 बॉक्स बना रहा है तो 4 वर्कर 84 बनाएंगे।
तो that will also tell you. Fatigue. Fatigue का मतलब होता है आपका टायर्डनेस. फटीग का मतलब होता है टायर्ड होना. आपको पता है when you are working for continuously in your school you have the intervals. Recess period होता है. क्यों होता है? Because continuously from morning 8 o'clock till 11 you have been studying, you have been hearing to your teachers. आपका mind जो है it doesn't concentrate. और लेबर्स वर्कर्स जहां काम करते हैं if they are doing it physically they require some rest. अदरवाइज प्रोडक्शन आपका जो है इफेक्ट करता है. एक बहुत सिंपल एग्जांपल है. व्हेन वी स्टार्ट अवर हमारा पेपर जब स्टार्ट होता है आई हैव सीन चिल्ड्रन राइटिंग इट विथ ब्यूटिफुल मोती जैसे, और जब वो एंड में आता है तो मुझे यही नहीं समझ आता कि उसने लिखा क्या. दिस इज बिकॉज द चाइल्ड इज टायर्ड. So we need to give some break. Similarly, while we are working, the workers also need some break. लेकिन कितना देना चाहिए? So to do that, we need to study the fatigue कि कितने time के बाद people become tired. A person is bound to feel tired physically and mentally if he or she does not rest while working. The rest in Japan, you know, there is one, मतलब आप जो हो काम करते करते 5-10 मिनट सो सकते हो. सोने का मतलब ये नहीं कि आप घर से चद्दर लेकर चले गए. मीन्स ऑन योर टेबल यू कैन टेक अ नैप under this system only. This will result in, they will be able to regain their stamina and work again with same capacity, and it would improve the productivity. Fatigue study seeks to determine the amount and frequency of rest interval in completing the task. आपने देखा होगा 8 घंटे का शिफ्ट होता है और उसमें 1 घंटे का उनको देते हैं ब्रेक. Normally a company में 3 shifts are there of 8 hours, and even in a single shift the person is given some interval. This is, and if the work is more manual, सर पे भी तो उनको थोड़ा बीच बीच में टाइम दिया जाता है, ब्रेक दिया जाता है, जिससे कि दे आर एबल टू रीजेनरेट देयर एनर्जी. There can be many causes for fatigue, like long working hours, doing unsuitable job, having uncordial relation. इन सबसे हम in the administration बॉस के साथ झगड़े से ही हम लोग जो है थक जाते. So he says there should be some interval given. Last but not the least is, मतलब वैसे तो mental revolution he has given one separate one अब दिया है, but last but not the least is differential piece weight system. इसका मतलब है, और this is again a contradiction to fair remuneration of FAOLs. It is contrast to FAOLs fair remuneration. And अगर ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, normally it has come in 3 marker, so you have to show the example. Maybe there are 2 workers, एक A है और दूसरा B है. A जो है वो एक दिन में 100 यूनिट्स बनाता है, एंड B जो है वो एक दिन में 60 यूनिट्स बनाता है. नाउ अकॉर्डिंग टू टेलर, अगर इन दोनों को सेम सैलरी दिया जाएगा तो दोनों डिमोटिवेट हो जाएंगे. सो ही सेज देयर शुड बी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, जिसमें इसको ज्यादा और इसको कम, यानी कि ये इतने कमाएगा और ये जो है इतने कमाएगा. ये जो इनका दिस डिफरेंस जो है दैट वुड डिटरमाइन कि भाई जो ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे और जो कम काम करेगा उसे कम पैसे मिलेंगे. एंड इससे क्या होगा, जो कम कर रहा है he would be motivated to do more, और जो ज्यादा करता है he would be satisfied.
If this question comes, you have to show such example. आपको ऐसा एग्जाम्पल दिखाना है. ये रहा, the example is given here. According to Taylor, the difference of जो मतलब कि उसने दिया है कि एक आदमी जिसका आउटपुट 10 यूनिट्स है उसको ज्यादा, और जिसका मतलब कि उसे कम है उसे कम, तो उससे क्या होगा, देयर वुड बी डिफरेंस. So the difference would be enough for the inefficient worker to be motivated to perform better. From his own example, Taylor gives the example of a worker called Skimmit who was able to earn 60% more wages from $1.15 to 1.85 on increasing pig iron loading from 12.5 to 47 ton. वो कहता है कि उसने खुद देखा है कि when they are given some incentive, अगर कोई इंसेंटिव उनको मिलता है ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट, तो देन efficient worker would be motivated because he is getting more, and inefficient motor मतलब कि जो वर्कर है he would be also motivated कि if I perform better I would get better. So this is what we call as differential piece wage system. इसमें आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो. वैसे तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इट इज डिटरमाइंड टू स्टैंडर्ड आउटपुट पर वर्कर इज 10 यूनिट्स. So those who made standard or more than, they would get 50 rupees. यानी कि 50 into 10, 500. And those who are going below, उनको 40 मिलेगा. तो जिसने आपका efficient worker जो है उसको ज्यादा मिल रहा है और inefficient को कम मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, दोनों मोटिवेट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमने पढ़ लिया है ये उसी का है. It is important to have a relook at the techniques of scientific management. Taylor's prescription of efficiency, search for efficiency requires the search for one best method, and one chosen method should be there. There must be a compensation system that differentiates the efficient and non-efficient. Thus, rather than quarreling over the share in the resultant surplus, the workers and managers should work in harmony for maximizing the output. Clearly, the sum and substance of Taylor's idea lies not in disjointed description, but in the change of mindset, जिसको उसने बोला है mental revolution. Mental revolution is a change in the attitude of worker and management towards from one to competition to cooperation. They both realize they require each. Both should aim to increase the size of surplus. तो इसके लिए अगर हमें थोड़ी बहुत, if we are taking the method study, motion study, अगर managers उन चीजों को लेते हैं तो then there might be a change. This would eliminate need for any agitation. Management should share, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, part of surplus with workers, and also workers should contribute their might so that company makes profit. This will be good for both and also for company. In the long run, only workers' well-being will ensure prosperity of the business. अगर business अच्छा रहता है तो workers आपके अच्छे रहते. Today, many new techniques have been developed. Operation research, it was developed in the Second World War. Similarly, the assembly line, जो कि आपका फोर्ड ने मॉडल, ये सारा आपका पेपर का क्वेश्चन है, मॉडल टी कार के लिए बनाया था. अगर आपने कभी कभी गूगल करिएगा, इमेजेस डालिएगा, जो उनका पहला मॉडल था ना टी कार करके, उसमें उन्होंने असेंबली लाइन लिया था. इवन अभी भी हम यूज करते हैं. The latest development in scientific management is lean manufacturing. Lean मतलब a day nowadays robotic and computers are being used in production and other business activities. तो ये आपका जो है, it is telling robot जो है, they try to eliminate all, जो हमने ऊपर motion study करा ना, ये सबको ये eliminate करता है less time में
तो दिस इज हाउ वी कम, मतलब अब हमारा जो है और भी मॉडर्न हो चुका है। उसने जो बताया था, those all were at the ground level when people are working with their hands. But now with the modern technology, we have also improvised. So that is all in Taylor's principles of management, but they are scientific. He was called as father of scientific management. इधर I am going to give you a stop. Class 12. आप लोगों को स्ट्रिक्टली ये इंस्ट्रक्शन है that you would be reading the chapter till here. We would be doing the MCQs and questions of this in the next class, and then we would move to the next one, that is payoffs. आप यहां तक अच्छे से पहले समझोगे, फिर आप आगे जाओ. Is it clear to all of you, Niranjan, Vani, Manya, and Riti? Right? Because I want now no compromise. आपका इतना होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आए और आप कर लो. ठीक है, चलिए, let us now taken off. Bye, see you in the evening.